I hope you can see the board. These are the formulae which we have last time seen. Flux, then electric intensity due to the sphere, electric intensity due to the cylinder. Then we have seen the electric intensity due to the plane sheet of charge inside and outside. And even we have seen the electric intensity due to the electric conductor of any shape. Then we have seen the potential energy of two charges. Then we have seen the potential energy of three charges system. And then we have seen the work energy principle, which is the most important tool in this section. Then again we have seen the concept of electric potential, that is the work done in order to bring the unit positive trace charge from infinity to any point. And also we have seen the relationship between the electric intensity and electric potential. It gives that electric intensity is going to be same as the negative of potential gradient. And also we have seen the dipole. डायपोल का भी कंसेप्ट हमने देखा था. तो डायपोल के बारे में देखा था कि डायपोल का जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो उसके एक्सियल पॉइंट पे इस फॉर्मूला से दिया जाता है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये दूसरे वाले फॉर्मूला से दिया जाता है, जिससे हमने ये देखा था कि एक्सियल पॉइंट पे इक्वेटोरियल पॉइंट से डबल इंटेंसिटी हुआ करता है. और ये भी हमने देखा था कि इन जनरल किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस तरह से फाइंड किया जाता है और इवन पोटेंशियल कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी पॉइंट पे. तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला है V equal to 1/4π into P cos theta upon R square for the dipole, and this depends on theta. और उसके दो स्पेशल केसेस है. It becomes maximum on axial point and minimum, that is zero, at a equatorial point. This is all about the potential of a dipole. Then again we have seen the torque acting on a dipole whenever it is kept in an electric field. So it is given by Pe sin theta. Its maximum when it is perpendicular to the electric field, and it is minimum when the dipole is parallel to the electric field. And potential energy is given by in two ways, in two formulas. दो तरह से potential energy दिया जाता है. ये जो पहला वाला फॉर्मूला है इधर, ये Pe into 1 minus cos theta, ये कब यूज किया जाता है जब डाइपोल ऑलरेडी पैरेलल है और पैरेलल पोजीशन से अगर थीटा एंगल पोजीशन पे टर्न करता है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है. लेकिन अगर डाइपोल ऑलरेडी परपेंडिकुलर है और फिर परपेंडिकुलर पोजीशन से अगर वो थीटा एंगल पोजीशन तक अगर टर्न होता है तो उस केस में उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए माइनस Pe cos थीटा ये फॉर्मूला यूज किया जाता है. इसमें माइनस साइन क्यों आता है? क्योंकि इट हैज लॉस्ट द पोटेंशियल एनर्जी because the work is done by the electric field here in this case, and that's why the potential energy is supposed to be lost. And also we have seen that whenever the three capacitors are connected in series, then the equivalent capacitance is given by 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. But whenever they are connected in parallel, then it is given by C1 plus C2 plus C3. And also we have seen that the capacity is given by Q by V, and it is given by A epsilon naught upon K, A epsilon naught K upon D for a parallel plate capacitor. And the energy stored in the capacitor is obtained to be equal to half of QV or half of CV square and Q square by 2C, this way. And also we have seen the concept of polarization. So polarization is defined as the net dipole moment per unit volume, and net dipole moment can be found out in the separate way, and this polarization is directly proportional to the electric intensity applied electric field of electric field, and the constant of proportionality between them is called electric susceptibility, which is denoted by chi. And also that the intensity of induced field, तो induced electric field का जो intensity होता है EI उसको हम बोल सकते हैं. It is given by E into 1 minus 1 upon K, and even the surface density of induced charge is going to be equal to surface density sigma into 1 minus 1 upon K. And also we have seen the concept of displacement current, which is going to be the current which is associated with a changing electric field. Whenever there is a changing electric field, we can say that there is a current
that is associated with that changing electric field in the space, and that current actually causes the magnetic effect also, and that current is actually called as displacement current, which happens to be actually equal to epsilon naught into d phi by dt. If you want to express it in terms of intensity, then phi can be expressed as intensity into area, so that area can be taken out, and we can get this as displacement current is equal to epsilon naught into a into dE by dt. So all these are the formulae from this chapter. Let us move to the numericals now. Okay, so सबसे पहला इसमें MCQs भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए हम MCQs भी करेंगे फटाफट। चलो, तो सबसे पहला ही MCQ जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं समझने जैसी, जो हम अभी समझेंगे फटाफट। तो देखो, सबसे पहली बात ये कि द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड and isolated. Then the effect of increasing the plate separation on the charge, potential difference and capacitance respectively are. तो देखो अभी ठीक से क्या बोला है उन्होंने कि एक कैपेसिटर है हमारे पास। Don't unmute yourself unnecessary. Who is it? Okay, so see here, it's given that and parallel plate capacitor is charged. मतलब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, ये सपोज एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, जिससे वो चार्जिंग चालू हुआ, और चार्ज होने के बाद उसको हमने इस बैटरी से डिस्कनेक्ट किया। देखो यहाँ पे जो उन्होंने बोला है कि प्लेट सेपरेशन, सॉरी, एंड देन आइसोलेटेड। ये आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ, इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी आफ्टर इट्स चार्ज। तो सपोज ये चार्ज हो गया और उसके बाद हमने उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है, देखो ऐसे, and then the charge, sorry, the charge on the capacitor will remain with it forever because it is disconnected from the battery. So whenever the charge is, sorry, capacitor is charged and disconnected from the battery, what happens is the charge on the plates remains constant. Whatever may be the case, charge on the plates remain constant. तो क्योंकि यहाँ पे रास्ता ही बंद कर दिया ना हमने चार्ज का, चार्ज जो है वो फ्लो हो ही नहीं सकता है, ये प्लेट्स के ऊपर जितना भी चार्ज है वो किधर भी नहीं जा सकता है, जो भी चार्ज है वो ना प्लेट्स में से बैटरी में जाएगा ना बैटरी में से प्लेट के अंदर आएगा। तो इसका मतलब हमने इन चार्जेस का रास्ता ही बंद कर दिया, और इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि as soon as the capacitor is disconnected from the battery, the charge on the capacitor remains constant. ये हमको अच्छी तरह समझना है, charge becomes constant. Okay, even at the same time, चलो ठीक है, तो चार्ज के ऊपर जो जो चीजें डायरेक्टली डिपेंड करती है तो वो सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, नो डाउट, और उसकी वजह से जो भी हम करेंगे उसका इफेक्ट जो है वो चार्ज कांस्टेंट होने की वजह से जो भी होगा वो होगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, सपोज हम ये जो डायग्राम है वो थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सपोज दीज आर द प्लेट्स, okay, these are the two plates of the capacitor, and suppose they are charged already with a charge q. Suppose this is minus q, so plus q and minus q are going to be the charge which is kept on these two plates, and they are disconnected from the battery. Okay, अब देखो जैसे ही वो डिस्कनेक्ट होते हैं बैटरी के साथ, बैटरी से, तो उसकी वजह से चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, नो डाउट। अभी उन्होंने क्या बोला देखो ठीक से कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन। सो प्लेट सेपरेशन, अभी प्लेट सेपरेशन अगर हमने इंक्रीज किया मतलब क्या कि अगर हमने ये पूरा जो प्लेट है तो वो प्लेट अगर थोड़ा दूर लेके जाते हैं, दिस प्लेट इज जस्ट
increased, मतलब distance between the two plates is going to be increased. So suppose that initial distance between the two plates is going to be suppose small d. ये देखो suppose यहाँ पे d जो distance है इन दोनों प्लेट्स के बीच में है ऑलरेडी, और जैसे हमने ये दोनों प्लेट्स को दूर किया तो उसकी वजह से ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया. सपोज प्लेट सेपरेशन इज इंक्रीज्ड, तो उससे क्या होगा देखो, ये हम समझ सकते हैं आराम से कि सबसे पहली बात इसके चार्ज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. तो वो तो हमने अभी भी बता दिया कि चार्ज इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट, नो डाउट, चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, दूसरी बात है पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा देखो ठीक से. पोटेंशियल डिफरेंस V is actually given by the formula E into D, right? E into D, and at the same time E is actually given by the formula E is equal to sigma upon epsilon naught, right? And sigma is actually given by the formula which is equal to Q upon A, correct है. देखो ठीक से अभी ये तीनों फॉर्मूले हमको कंबाइन करने हैं. तो अभी इसमें से देखो, अगर चार्ज कांस्टेंट है, हमने सिर्फ प्लेट सेपरेशन बढ़ाया ना, ये डी को जो है वो हम इंक्रीज करने वाले हैं. लेकिन अभी डी इंक्रीज करने से वी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जरूर वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन उसके लिए ई कांस्टेंट होना चाहिए. चेक, ई किसके ऊपर डिपेंड करता है, ई डिपेंड करता है सिग्मा के ऊपर और इप्सिलॉन नॉट के ऊपर. इप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, बाकी सिग्मा बचा. सिग्मा डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है क्यू और ए के ऊपर, राइट. तो इसमें से क्यू जो है वो कांस्टेंट है और एट द सेम टाइम एरिया जो है वो भी कांस्टेंट है. तो Q and A is constant and that's why sigma is going to be constant, and since epsilon naught is also constant, if intensity E is also going to be a constant, so intensity is going to be constant, that means V is going to be directly proportional to D, and D is going to increase, so V will also increase. The potential difference between the 2 points, the 2 plates is going to increase. So see here, so पहले चार्ज जो है वो तो कांस्टेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस. तो इंक्रीजेस वाला ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास इंक्रीज वाला, एक बस डी वाला. और तीसरी बात, कैपेसिटेंस के बारे में क्या होता है देखो ठीक से. कैपेसिटेंस के बारे में हमारे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q अपॉन V. देखो ठीक से अभी इसमें V जो है वो V डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से V बढ़ रहा है, और अगर V बढ़ गया तो ऑब्वियसली कैपेसिटी कम होगा, सीधी बात है. तो इसलिए कैपेसिटी जो है वो V के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होने की वजह से इट विल जस्ट डिक्रीज. और एक तरीका है C के बारे में पता लगाने का. C डायरेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस D in this way because we have the formula C is equal to A into epsilon naught upon D, right? And they are saying that the distance between the two plates is increased, right? इंक्रीज किया उन्होंने, तो इसलिए D जैसे इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली C को घटना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा. इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि C also decreases here, no doubt. So we can say that this is going to be the correct option, that is D here. समझा इसमें कुछ डाउट? अगर कुछ डाउट है तो हैंड रेज करो, आई विल अनम्यूट. Okay, so let us see the next question, next MCQ actually. See here, a slab of dielectric material, dielectric constant K, has the same area as that of the plates of a parallel plate capacitor and has a thickness of 3d by 4, मतलब 3/4 of D, okay, where D is going to be the separation of the plates. Okay, the plates, the change in capacitance when the slab is inserted between the two plates is. तो मतलब अभी देखो यहाँ पे दो प्लेट सपोज है, ये सपोज कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट है और ये कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट है. ओके, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है D सपोज. ओके, तो ये D इतना डिस्टेंस इनके बीच में दिया हुआ है. ओके, और A इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट. ओके, तो और ये बीच में स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, तो देयर इज गोइंग टू बी एयर इन बिटवीन द टू प्लेट्स, राइट. सो व्हाट कैन बी द कैपेसिटी इन दैट केस. पहला वाला ओरिजिनल कैपेसिटी निकाल सकते हो क्या, देखो ठीक से. व्हाट इज गोइंग टू बी द इनिशियल कैपेसिटी ऑफ दिस होल कैपेसिटर.
yes, we can find it out. C naught we can say. So C naught is going to be actually equal to A into epsilon naught upon D. No doubt. चलो ठीक है. Now अब देखो, अभी उसके बाद क्या किया देखो. The slab of material of dielectric constant K has same area as that of the plates, and thickness is going to be 3/4 of D, and this is inserted in between the plates. अभी देखो यहाँ पे नया situation क्या होगा देखो ठीक से. So the new situation is here. In the new situation, the same capacitor, which is consisting of two plates which are separated by resistance D, but this time here the plate of capacitors or plate of thickness 3D/4 is inserted in between the two plates, right? तो दोनों plates के बीच में ये देखो, ये स्लैब जो है वो हमने डाल दिया. ओके, ये स्लैब हमने यहाँ पे डाल दिया दोनों प्लेट्स के बीच में, जिसका एरिया तो उतना ही है जितना कैपेसिटर का एरिया है, नो डाउट, लेकिन उसका जो थिकनेस है वो 3D/4 रहने वाला है. अच्छा, ये अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में तो इसको हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, समझने के लिए. बट जस्ट डोंट फॉरगेट दिस इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो अभी हम देखेंगे ठीक से कि अगर हमको ये थिकनेस 3D/4 थिकनेस का स्लैब डालने के बाद का अगर कैपेसिटी निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे. सपोज दिस इज द न्यू कैपेसिटर व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड. तो देखो ये जो थिकनेस है ये कितना है, इट इज गिवन टू बी 3D/4, राइट. बट द टोटल थिकनेस, the total distance between the two plates is still d here. तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो अभी भी d है, नो डाउट, लेकिन सिर्फ ये जो थिकनेस है, स्लैब का जो थिकनेस है वो यहाँ पे 3D/4 बन रहा है, नो डाउट. चलो ठीक है, अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस कितना बनेगा, कैसे ढूंढ के निकालेंगे. उसके लिए देखो यहाँ पे एयर है, ठीक है, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मीडियम यहाँ पे रखा हुआ है. तो जब ऐसा होता है तो हम देखते हैं कि द कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस इज गिवन बाय आइदर अ रेडीमेड फॉर्मूला और वी कैन जस्ट डिराइव इट ऑन द स्पॉट. अभी भी उसको हम डिराइव कर सकते हैं आराम से, नो डाउट. देखो क्योंकि ये जो सिंपल सिचुएशन है, हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम देखा था कि जब एक कैपेसिटर, मान लो एक कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में अगर दो डायरेक्ट्रिक्स अगर डाले जाते हैं ऐसे, ये सपोज एक डायरेक्ट्रिक और दूसरा एक ये ऐसा डायरेक्ट्रिक, जिनके दोनों के जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट्स है वो अगर सपोज K1 और K2 है, तो उसमें हमने देखा था कि जो कैपेसिटर, द न्यू कैपेसिटेंस इट बिकम्स इज गोइंग टू बी, और इसका जो थिकनेस है वो भी सपोज यहाँ पे D1 है और यहाँ पे D2 है, और इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, जिससे हमने लिखा था कि A इंटू इप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2. ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा था लास्ट टाइम, याद है. तो अगर ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिसके अंदर the space between the two plates of the capacitor is occupied by two different media, one of which is having the dielectric constant K1 and other one is having the dielectric constant K2. Here we can say that this plates, the space between the two plates of capacitor is filled up by two media, one of which is air whose dielectric constant is 1, no doubt. One is the dielectric constant of air and the second one is the medium whose dielectric constant is going to be K here, like this. तो यहाँ पे K1 मतलब कौन है, 1 है, और K2 कितना है, K है, नो डाउट. तो अभी इस केस में देखो ठीक से, अगर हम नया कैपेसिटी अगर बनाना चाहते हैं, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो कितना बनेगा, तो वो देख सकते हो C dash, we can say this C dash is actually going to be actually equal to A into epsilon naught into, sorry, upon D1. What is D1 here?
in which this dielectric of dielectric constant K is distributed. तो इसलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस d1 है वो बनेगा 3d/4, करेक्ट है। तो ये 3d/4 ये आ गया हमारा d1 के बदले, और उस रीजन में जो मीडियम है उसका डायरेक्टली कांस्टेंट कितना है, ये देखो k है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा k हियर। इसको हम ठीक से लिखेंगे 3d/4 and this whole thing is to be divided by k1, that is k here, plus अभी दूसरा जो बचा हुआ जो पार्ट है जिसमें एयर है तो उसका थिकनेस कितना है, तो d में से 3d/4 काट के जो बचता है, तो देखो d माइनस 3d/4 अगर करेंगे, मतलब d में से अगर 3/4 ऑफ d अगर माइनस करेंगे तो सिंपली हमको d/4 मिलेगा। चेक करो d/4, राइट। सो इफ यू पुट दिस d/4 हियर as d2, तो ये बन गया d/4 and then we'll have to divide it by 1 simply because the air has a dielectric constant 1 here, and that's why this formula then it becomes actually equal to, like we say, a epsilon naught as it is, that is divided by, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ठीक से तो हमको मिलेगा 3d/4k, राइट, प्लस अब यहाँ पे इसको ये नीचे 1 है वो तो नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, तो इसलिए उसको हम सिंपली लिख सकते हैं d/4 simply, that's it. This is going to be d/4. If we take d/4 common and just take the LCM here in this case, then we can get it in the next step, that is, see here, a epsilon naught as it is upon, here it is d/4 is taken common, so d/4 and bracket में बचेगा 3/k plus 1, that's it. And if we take the LCM here in this case, then we can write this as, अच्छा ये 4 को भी ऊपर लेके जाओ तो वो बनेगा 4, नहीं तो ठीक है रखो ऐसे ही, नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे a epsilon naught upon d/4 as it is into, here it is 3 plus k and that is to be divided by k itself, okay। तो ये बन गया, और इसको हम लिख सकेंगे ये 4k को ऊपर लेके जाओ तो वो हमारा बन जाएगा 4a epsilon naught k divided by d into 3 plus k, करेक्ट है। तो ये बन गया हमारा नया कैपेसिटी, लेकिन what they have asked here is not the new capacity but they have asked to the change in capacity, right, change in capacitance. So how will you find out the change in capacitance? See this, here it is the original capacitance, initial capacitance, remember, which is a epsilon naught upon d, and we have found out the new capacitance here, that is 4 a epsilon naught k upon d into 3 plus k, right. So we can say that the change in capacitance, how can we find out the change? By subtracting the initial one from the new one. So the change in capacity can be found out to be equal to c dash minus c naught, where c dash happens to be actually ये जो already है 4 into a epsilon naught into k whole divided by d into 3 plus k, and that is to be subtracted with this a epsilon naught upon d simply, and now we'll be able to just take this something common from this here। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं अभी देखो ठीक से, तो इसमें से हम a epsilon naught into d कॉमन ले सकते हैं। चलो a epsilon naught upon d को अगर कॉमन लिया जाता है तो अंदर में क्या बचेगा देखो, तो अंदर में बचेगा 4k upon 3 plus k, right, minus 1 simply. And if we just solve this further, then we can get this as a epsilon naught upon d into bracket 4k minus 3 minus k divided by 3 plus k, so that we can write this as a epsilon naught into, तो यहाँ पे क्या आएगा 3k minus 3 and whole divided by k plus 3, no doubt, which is actually going to be equal to, अच्छा इसमें से अगर 3 कॉमन लिया जाए
तो अंदर बचेगा C A epsilon naught into K plus 1, नहीं sorry, K minus 1 divided by K plus 3. This should be the change in the capacity. Check. 3A epsilon naught K minus 1 upon K plus 3. Okay. But there is no option like that. That means they may be asking the not the change in capacitance but new capacitance, not change. इसमें से ये change word हटा दो, change नहीं बल्कि new capacitance of the capacitor whenever the slab is inserted. तो वो तो हमको इधर ही मिल गया था, ये देखो यहाँ पे ये जो हमको मिला था, this is going to be the answer, final answer. तो देखो 4A epsilon naught K upon D into 3 plus K, right? A epsilon naught upon D into 4K upon K plus 3. Okay, so this D is actually going to be the correct option, which is there. देखो यही तो हमने डिराइव किया कि नहीं, यहाँ पे ये जो है ये वही है एक्चुअली. इसको हम लिख सकते हैं आराम से ऐसे A epsilon naught upon D into 4K upon K plus 3. So just उन्होंने जो change word बोला है तो वो गलत है. चेंज नहीं निकालना है हमको बल्कि फाइनल कैपेसिटी ही निकालना है डायरेक्टली. ठीक है. So this we have done here this way. Next one, try this third one. The energy stored in a capacitor and dissipated during charging a capacitor via a ratio. अब देखो हमने ऑलरेडी जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो उस समय उसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और इस प्रोसेस में, चार्जिंग के प्रोसेस में जो एनर्जी इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है, मतलब जो चार्जेस को इधर से इधर लेके जाने के लिए जो एनर्जी लगता है इस प्लेट से, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक चार्जेस लेके जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन ही एक्चुअली एनर्जी के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होता है, जिसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट टाइम, जो कि हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाय 2C या हाफ Q इंटू V के बराबर मिल जाता है. और उसको डिराइव करने के लिए हमने एक इंटरमीडिएट स्टेप कंसिडर किया था, जबकि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और उस समय अगर हमको एक छोटा चार्ज dq इतना चार्ज अगर इस तरफ से इस तरफ अगर सेंड करना है तो उस प्रोसेस में कितना वर्क डन निकाला जाता है, वो हमने निकाला था V इंटू dq के बराबर, राइट. और इस V इंटू dq को हमने इंटीग्रेट किया था फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, और ये इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है वो हमको मिला था टोटल वर्क डन, which happens to be same as the energy stored in the capacitor, which is found out to be equal to Q square upon 2C. करेक्ट है, ये हमने देखा था लास्ट टाइम. ओके, बट अभी ये सोचो कि उन्होंने क्या बोला है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वो तो हमारे पास मिल गया Q square by 2C, नो डाउट. But at the same time, the energy dissipated during the charging of capacitor. So, abhi, what is this energy dissipated in the during the charging of capacitor? See, whenever the capacitor is being charged, suppose the I is the instantaneous current that is flowing at that time. Okay, and suppose that this current flows for a very short time dt, and suppose the resistance of this whole conducting wire is going to be R, suppose. Then we can say the total heat or the energy dissipated in this time dt due to the current I at that time will be given by the formula I square into R into dt. ये बनता है, it is a short small amount of energy dissipated whenever a current I flows for a time dt in a resistance R. Okay, तो अभी इसमें देखो ये जो है इसको भी हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये भी हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके हमको टोटल एनर्जी डिसिपेटेड, ये जो इसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बात की है वो हमको मिलने वाला है. इसको हम हीट भी बोल सकते हैं. तुमको याद होगा 10th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड में हीट का एक फॉर्मूला था, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो कि जूल्स लॉ से हमको मिलता था, याद है, आई स्क्वायर आर टी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर हीट डिसिपेटेड और एनर्जी डिसिपेटेड whenever current I flows in a circuit of resistance R for a time t. Okay, so here in this case the current I flows in a circuit of resistance R for a short time dt. So the energy dissipated will be given by
I square dt, but it is in a very small time. But here the current I is going to be a variable, and that's why we have to integrate this whole thing from 0 to final value of time t, so as to get the total heat energy dissipated. ओके तो अभी ये एनर्जी डिसिपेटेड जो है वो हम थोड़ा स्लाइटली रीअरेंज करके लिख सकते हैं इस तरह से। देखो तो इस आई स्क्वायर को अगर हम लिखेंगे आई इंटू आई, तो देखो ठीक से आई इंटू आर इंटू डी टी एज इट इज, नो डाउट। अभी यहाँ पे इसको और थोड़ा अरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे ई आई इंटू आर, राइट। ये इसको हमने डाल दिया एक ब्रैकेट में, और दूसरी तरफ ये जो आई इंटू डी टी है उसको डाल दिया दूसरे ब्रैकेट में। अभी जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी कि I into R मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, and that is variable, we know that. So therefore we can say that this I into R will be actually small v, that is the instantaneous potential at any instant, intermediate instant of time, and this I into dt is going to be the small charge that is flowing in a short time dt here. तो इसलिए यहाँ पे इसको हम dq लिख सकते हैं, dq it is a small charge that is flowing. ओके सो v इंटू डी क्यू, ये तो वही बन गया जो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये जो हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके कैपिटल Q तक, तो हमको वही रिजल्ट मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी Q स्क्वायर बाय 2C। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है वो एक्चुअली आता किधर से है, जो बैटरी वर्क डन करता है इन चार्जेस को इधर से इधर तक मूव करने के लिए, वही तो एनर्जी बनता है, और उतना ही एनर्जी डिसिपेट होता है जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है। तो द एनर्जी डिसिपेटेड इन चार्जिंग द कैपेसिटर is exactly same as the energy stored in the capacitor, and that's why the answer is 1, that is 1:1, or we can say A. Okay, next, see here, charge plus Q and minus Q are placed at the points A and B respectively, which are at a distance 12 apart. Okay, we can see the diagram. This is the charge plus Q, and here is the charge minus Q, which are placed at a distance 12. See it here. तो 12 डिस्टेंस पे वो रखे हुए हैं। ओके, एंड नाउ C is the midpoint of A and B. Okay, C is going to be the midpoint of A and B. No doubt. The work done in moving a charge plus Q along the semicircle CRD. देखो ठीक से, ये प्लस Q चार्ज जो है वो अगर हम इधर से इधर तक अगर मूव करेंगे तो उस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा वो हमको निकालना है। तो अगेन वी कैन सी दैट द वर्क डन इन सम प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद आया जो हमने बताया था कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो इन द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन U1 द चार्ज Q इज गोइंग टू बी एट द सेम पॉइंट हियर। तो यहाँ पे चार्ज Q जो है वो अपनी जगह पे ही रहने वाला है, माइनस Q भी अपनी जगह पे ही रहने वाला है। सिर्फ मूव कौन हो रहा है, चार्ज प्लस Q जो है, ये प्लस Q जो यहाँ पे दिख रहा है वो चार्ज मूव होने जा रहा है। तो पहले वो कहाँ पे था, C पॉइंट पे था, और बाद में कहाँ पे चला गया, D पॉइंट पे चला गया। तो हम देखो दो कॉन्फ़िगरेशंस इमेजिन करेंगे। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा जिसमें देखो ठीक से, सपोज ये जो पूरा पार्ट है वो हम थोड़ा क्रॉप करके, ये देखो ये लिख रहा है ठीक से, दिस इज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन पॉइंट A इज ऑलरेडी देयर। ये पॉइंट A जो है वो ऑलरेडी जहाँ पे है वहां पे ही है, और जो पॉइंट B जो है तो वो जो वहां पे भी जो माइनस Q चार्ज है वो ऑलरेडी वहां पे है, नो डाउट, बट द चार्ज Q हियर इज गोइंग टू बी एट दिस पॉइंट C हियर। तो ये जो पॉइंट C है यहाँ पे ये चार्ज प्लस Q रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो प्लस Q चार्ज है वो यहाँ पे रखा हुआ है सपोज, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन उसको हम बोल देंगे, चलेगा। दिस इज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ओके ओके, नाउ सी द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन? फाइनली हम क्या किया, हमने इस चार्ज Q को घुमा के इस पूरे सर्कल के ऊपर से घुमा के D पॉइंट पे रख दिया, राइट। तो जब उसको हम D पॉइंट पे रखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, सिचुएशन कैसा होगा? तो हम फिर से देखो बोल सकते हैं इस तरह से, ऐसा होगा। ये देखो दिस इज द सिचुएशन फाइनली, यू कैन राइट इट हियर। तो फाइनल सिचुएशन कैसा है देखो ठीक से,
हियर इन द जो ए जो है मतलब ए पॉइंट पे जो प्लस क्यू चार्ज था वो तो अभी भी उधर ही है, बी पॉइंट पे जो माइनस क्यू चार्ज था वो भी अभी भी उधर ही है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे अभी सी पॉइंट पे कोई भी नहीं है, नथिंग इज देयर इन एट दिस पॉइंट सी हियर, बिकॉज सी के ऊपर जो प्लस क्यू चार्ज था वो हमने शिफ्ट कर दिया किधर, डी पॉइंट पे, राइट। तो अभी ये फाइनली ये जो पॉइंट चार्ज क्यू है, प्लस क्यू है, वो यहाँ पे डी पॉइंट पे आ जाएगा ना फिर। तो यहाँ पे देखो ये आ गया, ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो यहाँ पे आ गया, और इसलिए हम ये देख सकते हैं कि ये है हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। समझ सकते हो ठीक से, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अभी हम देख सकते हैं कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के बीच में के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, U1 is the potential energy in this initial configuration, and U2 is going to be the potential energy of this final configuration here. We have to find out this U1 as well as U2 and just subtract them together so as to get this W, no doubt. So let us try to find it out. So see, in the initial configuration, what is the potential energy? U1, how much it is? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो फॉर्मूला हमारे पास है K, that is 1/4 pi epsilon naught. चलो 1/4 pi epsilon naught जो है वो बार बार लिखने से अच्छा है मैं उसको K से डिनोट करता हूँ। याद रखो 1/4 pi epsilon naught को मैंने K से डिनोट किया है, तो वो K क्या चला गया बाहर, और अंदर में क्या बचेगा? देखो ठीक से हमारा फॉर्मूला क्या है वो पहले हम लिखेंगे। वो फॉर्मूला है Q1 Q2, तीन चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमारा बनता है Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13, करेक्ट है। ये बनता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस थ्री चार्ज सिस्टम। ओके, अभी इसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम बोलेंगे U1 which is going to be actually equal to K into what is Q1 Q2 here। अच्छा, Q1 मतलब कौन? प्लस Q, Q2 मतलब कौन? माइनस Q, और Q3 मतलब कौन? प्लस Q सपोज, ठीक है, ये प्लस कैपिटल Q, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे जब देखो क्या आएगा, तो फर्स्ट टर्म विल बी plus q, this plus q into minus q, which is going to be minus q square upon what is the distance between them। see it here, ये plus q और minus q के बीच में डिस्टेंस कितना है वो तो उन्होंने देखे रखा है, वो 2l है करके, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2l। ओके, प्लस अभी यहाँ पे दूसरा टर्म देखो क्या आएगा, Q2 Q3, राइट। तो Q2 मतलब कौन? ये माइनस Q, और Q3 मतलब प्लस Q, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? माइनस Q इंटू कैपिटल Q, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिस्टेंस कितना है? वो तो L है, ये बन गया L इधर। और फिर फाइनली Q1 Q3, ये देखो ये Q1 और ये Q3, तो स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, इट बिकम्स Q इंटू कैपिटल Q, बट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? अब देखो ये मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब जरूर इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? एल इतना डिस्टेंस होगा जरूर, नो डाउट। सो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे एल। ओके, तो ये हमारा मिल गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी इन द फाइनल सिचुएशन हियर। तो फाइनल सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो देखो कितना रहने वाला है। तो उसमें अभी देखो U2 we can call it as U2, उसके लिए भी फॉर्मूला वही है। फिर से हम यहाँ पे k को जो है बाहर निकाल के रखेंगे, और अंदर में बचेगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 upon R13। Okay, here again we can see that the Q1 means plus Q, ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, और ये हमारा Q3 है, चलेगा। तो देखो अभी यहाँ पे Q1 Q2 मतलब क्या? ये प्लस Q एंड माइनस Q, उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना बनेगा? माइनस Q स्क्वायर, नो डाउट। दिस इज माइनस Q स्क्वायर अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? इट इज 2l ऑलरेडी, वी हैव सीन इट, सो हियर इट इज 2l एज इट इज, प्लस अभी देखो दूसरा टर्म जो बनेगा तो उसमें क्या आएगा देखो ठीक से, Q2 Q3, Q2 मतलब कौन? माइनस Q, और Q3 मतलब कौन? ये प्लस Q, तो इसलिए वो बनेगा माइनस Q इंटू प्लस Q कैपिटल Q,
That is to be divided by the distance between them. How much is the distance between them? It's L again. So we can say that is L here plus the last pair, that is minus Q and sorry this plus Q and plus Q here. तो इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो हमको भी निकालना है और उनका प्रोडक्ट भी करना है. तो Q into capital Q and that is to be divided by the distance between them here. ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? वो 3L है. चेक करो कैसे. ये देखो ये ऑलरेडी 2L है और ये L उसमें अगर ऐड हो जाए तो वो 3L बनेगा कि नहीं? जरूर. तो इसलिए यहाँ पे वो आ गया 3L, नो डाउट. ओके, तो ये बन गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी which is going to be in the equation number 2. Okay, but in order to find out this U2 minus U1 we will have to just subtract these two equations, right? So U2 minus U1 कब तभी मिलेगा जब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को subtract करेंगे. So let us subtract this equation number 1 from equation number 2 and see what happens. So देखो क्या होता है. तो अभी U2 में से U1 अगर कैंसिल करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो जो कॉमन टर्म्स है वो तो उड़ जाएंगे. ये देखो ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म और ये टर्म भी सेम है जो कैंसिल हो गया. सिर्फ बचेगा ये दोनों टर्म्स. देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों ही बचे रहेंगे जिनको हमको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. So let us do that. So we can get it as U2 minus U1 which is going to be actually equal to this term which is Q into capital Q upon 3L minus this term Q into Q upon L, right? So this is Q into capital Q upon L. Okay, so if we take this Q into capital Q upon L common, then we can left with 1 by 3 minus 1 inside the bracket, which happens to be actually equal to U2 minus U1 to be equal to Q into capital Q upon L into bracket में क्या आएगा 1 by 3 minus 1 मतलब क्या 1 minus 3 upon 3 मतलब minus 2 by 3, right? So this is minus 2 by 3 which can be written as minus 2 Q upon 3L, and this is nothing but the work done. That's all. So according to the work energy principle, we have found out the work done to be equal to minus Q upon minus 2 Q upon 3L minus 2 Q upon 3. अच्छा, ये हमने K का जो वैल्यू है वो रिप्लेस नहीं किया अभी तक. जो बाहर K हमने कॉमन निकाला था, तो वो जब हम दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे ना तो वो बाहर में K वैसे ही रहेगा. ये देखो यहाँ पे पूरे ब्रैकेट के बाहर जो है K तो रहेगा ही ना. ये देखो यहाँ पे भी K रहेगा ऑलरेडी. तो वो K अगर हम यहाँ पे डाल देंगे उसका वैल्यू तो उससे हमको एक फाइनल आंसर मिलेगा. ये देखो K, तो K का वैल्यू जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, तो अगर डाल देंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा W इज इक्वल टू minus 2 into Q into capital Q upon 3L as it is into K का वैल्यू है 1/4 pi epsilon naught. Okay, so here we can just cancel this 2 with this 4 here, leaving behind 2 in this case, so that we can get this full and final answer to be work done W is equal to minus Q capital Q upon 3 into 2 कितना बन गया 6 बन गया. तो ये 6 pi epsilon naught into this L, right? So see it here, this is going to be actually the formula for finding the work done, minus QQ upon 6 pi epsilon naught L, which is there in the option number C, A, sorry, negative say minus QQ upon 6 pi epsilon naught into L. This is going to be the correct option, which is obtained by using this method. Let us see the next question. A parallel plate capacitor has a circular plates of radius 8 cm and a plate separation 1 mm. What will be the charge on plates if the potential difference of 100 volt is applied? Okay, so see, these are the two plates have the area
सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ना, तो रेडियस 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है ऐसा, जिनके बीच में ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट है सपोज, और इससे ये कैपेसिटर बना हुआ है। तो देखो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C इज एक्चुअली इक्वल टू A इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू K अपॉन D। लेकिन K का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम है ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा अपॉन अपॉन D सिंपली। लेकिन एरिया कैसे हम निकाल पाएंगे, तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास पाई इंटू आर स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वेयर पाई इज गोइंग टू बी एक्चुअली द 3.14 into r square. R is going to be 8 centimeter, see it here, because the plates are circular. So the area of the each plate will be pi r square and R is going to be 8 centimeter. But centimeter को मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 8 into 10 raised to minus 2 का whole square ये बनेगा area, which happens to be actually equal to 3.14 into 8 का square बन गया 64 and that is multiplied with 10 raised to minus 2 का square बन गया 10 raised to minus 4. This is actually going to be the area of each plate, which is to be put here in this formula here. And epsilon naught का तो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, देखो epsilon naught कितना होता है 8.85 into 10 raised to minus 12 ये होता है epsilon naught का वैल्यू, which is going to be in coulomb square per Newton meter square. Okay, and finally the distance between the two plates is given to be 1 millimeter, right? So the small d here is given to be 1 millimeter. 1 millimeter मतलब कितना 10 raised to minus 3 meter, right? So we have to put it here. So इसमें अगर हम डाल देंगे सारे values तो एरिया के बदले यहाँ पे आ जाएगा 3.14 into 64 into 10 raised to minus 2 sorry minus 4, epsilon naught का वैल्यू आ गया 8.85 into 10 raised to minus 12 और d का भी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है जो कि 10 raised to minus 3 है. Okay, so this is 10 raised to minus 3. This 10 raised to minus 3 will just go up and become 10 raised to plus 3 and just cancel with this 10 raised to minus 4, leaving behind 10 raised to minus 1, which adds up to this 10 raised to minus 12 here, so as to become 10 raised to minus 13. Okay, so 10 raised to minus 13 सारी हमको यहाँ पे मिल रहा है, बाकी जो नंबर्स है वो तो मल्टीप्लाई करने हैं, तो नंबर्स आ रहे हैं 3.14, दूसरा है 64 और तीसरा बन रहा है 8.85. ओके, सो इनको तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू आफ्टर फाइंडिंग दिस कैपेसिटी हियर, कैपेसिटी मिलने के बाद क्या करने वाले हैं हम, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और हमको चार्ज निकालना है, तो हमको पता है कि कैपेसिटी C इज एक्चुअली गिवन बाय Q अपॉन V, राइट? सो वी कैन से दैट Q इज एक्चुअली इक्वल टू C इनटू V, दैट्स इट. सो जो Q है वो C को V से मल्टीप्लाई करके हमको मिलने वाला है, तो इसलिए फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं अभी, तो इस कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस से जिससे हमको चार्ज मिल जाएगा, तो Q इज इक्वल टू C इनटू V. सो C इज गोइंग टू बी द सेम थिंग एज इट इज हियर, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी हमारे पास है तो हम लिख देंगे एज इट इज, ये देखो ओके, ये बन गया हमारा कैपेसिटी दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ V. V मतलब 100, मतलब भी 10 raised to 2 here, and then we can get it as a Q here, because we know that Q is actually equal to C into V, and this is C actually and this is V actually. तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा चार्ज Q जो कि इन तीनों का प्रोडक्ट रहेगा, बिल्कुल. अब ये तो हम निकाल सकते हैं आराम से, करो फटाफट कैलकुलेटर पे या तो लॉग टेबल से, तो इट विल बी इन 10 raised to minus 11 here coulomb. Okay, that's it. So just we'll stop here.